कुछ दिन पहले नाउ अगेन एक कपल का कॉल आया था मेरे पास एंड दैट वाज रिलेटेड टू ओह माय गॉड गुड वन एक्चुअली. ये मॉम को भी बोलूँगी जो न्यू मॉम्स हैं कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन. माय टीयर्स विल स्टार्ट रोलिंग एंड आई विल नॉट कंट्रोल बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट हैज गिवन मी a lot of a reason for a PPD. मेरे पास बच्चे को तरसा रही हो, दूध नहीं दे रही हो, ये कर रही हो. Your intuition is something that can never go wrong. I hope I'm making sense to you. No, I just got lost because जिस तरह से you presented this question ना, because बहुत सारी moms हैं उनको रोजमर्रा की जिंदगी में 200 बार उनके पास माइंड में सेल्फ डाउट आता रहेगा. बोन का ध्यान रखना. इतना बोला था, I will still get goosebumps because I'm very close to him. Very next day I get a call. And I've literally poured my heart on and I really want to know your side on it. Hello mommies, hello daddies. Hope you are doing well and your babies are thriving well too. So I am super excited. I'm just super happy because we are shooting the first ever podcast of the Sassy Mom Show. In this podcast, we are going to talk about parenting. We are going to talk about life with kids, couples. We are going to talk a lot over here. And today we have a very special guest. She is Soumya Pradyuman, who is a life coach, tarot card reader. She is healer. She's so much like a best friend for all the new moms out here. So let's welcome Soumya and let's dive in the deep conversation with her. Soumya, so tell us about your journey. What led you exactly to become a tarot card reader, life coach, healer? What exactly led you to come till here? Okay, so Anjali, frankly speaking, there was never a plan of becoming a life coach. Okay. Yeah, tarot card is something, or healing is something that I was into. I believed completely into it, and I learned all of it 10 years back. And 10 years into this industry, it's like too long. I was not practicing it. I just learned it, and I would help my friends, you know. And that's it. And like after life happened, you know, I conceived. So when, you know, doctor said completely bed rest. Okay, so that is when, you know, my husband was like, because I am a workaholic person, I cannot be sitting at home. So he was like, why don't you start? Like, why don't you help people? Like, people anyways come to you, like few friends, like I mentioned, mutual friends. So just start, you know. And I started, and they started coming back to me. And healing was something that helped me throughout my pregnancy thing. So I was helping people in healing as well. Healing means maybe like a Reiki, Lama Fera, all of that. Okay. So even the sound healing. Okay. So you know, singing bowl. So again, that helps children also. Like children also, like can you elaborate how? Yeah, that helps them. Like, you know, children. If you play a singing bowl, like, you know, if you practice it, specifically in the morning or evening, like after they come from their playtime, or maybe as soon as they wake up, when they are in the zone, they come from the zone, just play that helps them in, you know, focusing, positiveness, calming them down a bit, relaxing them. Relaxing is something, and that will control also the hyperactivity. You know that there are people, kids, no, who are like hyperactive at times. So that helps in that also, and it also, you know, gives you helps kids specifically in concentration, focus. Wow. That is for everyone, but kids also. I really didn't knew about it, and जो आपने अभी बोला ना, मुझे actually पता चला कि healing बच्चों के लिए भी होता है, या आपने अभी बोला तो पता चला. We really do not have anything this kind of. होता है जब वो बीमार हो तब आप ऐसी चीजें कर सकते हो. वो उस समय भी उनको, you know, उसको वो उनका बदली होता है. Positive. Even the bell that you ring, जब हम पूजा करते हैं तो वो बस दिखता है कि बस हम बेल बजाते हैं भगवान को ये करने के लिए. नो, जब बेल भी बजाते हैं तो उससे भी घर ही होता है. Correct. Right? Wow, it's amazing. So yeah, now let's hop to another question. So many people are skeptical about your energy healing, tarot. How do you help them to understand कि उनका power, उनका impact क्या होता है? How do you make them understand? Okay, so like बहुत लोगों को लगता है कि tarot is like
टिपिकल वो एस्ट्रोलॉजी वाला चीज है. करेक्ट, है इन अ वे कह सकते हैं. बट देख जब हम एस्ट्रोलॉजी का बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट प्लैनेट्स एंड देयर पोजीशन. सो दैट इज calculated through numbers like where you are born and the date, the time, the sun, the moon, all the 9 planets, all of that, unka position. So that gives you a roadmap for the whole, like you will do at certain age you'll be this. But tarot is something that connects with your energy, right? So it doesn't need all of that, and it gives you guidance अराउंड 1 year. 1 year से ज़्यादा का कुछ नहीं होता है. मैक्सिमम आप 2 year ऐसे वो भी एजम्पशन होता है लोग. तो आई कॉल इट GPS, लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग, सो टैरो कैन जस्ट गाइड यू. सो व्हाट इट वर्क्स विथ एनर्जी. सो सपोज you want to go somewhere now, how that thing is going to be, how that meeting is going to be perhaps, so it will give you a guidance कि yeah this will be this. So you prepare. But उसका impact मतलब हमें कैसे, मतलब आप लोग आपको कैसे देखते हो, उसका impact लोगों को कैसे दिखता है, मतलब कैसे पता चलेगा? ठीक है, मैं एक स्टोरी बताती हूँ छोटा सा. अभी क्या है कि ओके सो कुछ दिन पहले now again एक कपल का कॉल आया था मेरे पास, and that was related to kid का birthday. Okay, and they wanted to celebrate it like grand level पे कि हाँ birthday है. And किसी ने उनको बोला कि नहीं कर पाओगे. Again that is also something कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए. They asked me, I'm like look, आप कर तो पाओगे but it will be like really बहुत आप enjoy नहीं कर पाओगे. आप कर सब कुछ लोगे but you will not be able to enjoy that moment. अच्छा ऐसा क्यों, मतलब अभी बताती हूँ. तो ये तो मैंने बोल दिया, वो भी चले गए. नहीं मैम मेरे पास तो सब कुछ है, how can I not enjoy, this is what I've been waiting for. जब वापस आए सेलिब्रेट करके, then again they call, ma'am you were quite right, this reason what happened, we had money, we had everything, but I had to pay someone immediately. जब उसी दिन उसका कॉल आया और मैं भूल गया था completely, I had to give it to someone. कुछ कहीं और चला गया. मतलब ऐसा हो गया कि उनके पास पैसे का ऐसा क्रंचेस हो गया मैम कि मतलब बस सब कुछ हो गया, वो सब कुछ किया और अच्छे से किए, बट वो गेस्ट आ रहे हैं यहाँ देना. एक होता है ना व्हेन यू लैक ऑफ रिसोर्स, जब आप बहुत परेशान होते हो, दैट वाज देयर सिचुएशन एट दैट पॉइंट. तो दे डिड एवरीथिंग. किसी ने क्या बोला कि ये हो नहीं पाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टैरो कार्ड रीडर टू बी knowledgeable, because one card has infinite meaning. If I pick one card for you, now that has got so I have to calculate it according to your energy, like we can never do reading with one card. So if there is 2-3 cards, so I have to, how I articulate it, it is like a story that you say. दूसरा एक फ्रेंड था, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड का बात बता रही हूँ. दे आर पेट्रोलियम इंजीनियर by profession and वो फील्ड पे काम करते हैं. So he came and he was like, can you like just I want to switch job and this and that. तो बात हुआ. I also talk about health sometimes कि पैर में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है. And he said, no, I don't have any such problem, touch wood, I'm good. I'm like, all the best. It's very good that you just take care of your leg. Okay, specifically bone से related. बोन का ध्यान रखना, इतना बोला था. आई विल स्टिल गेट गूज़बम्प्स बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू हिम. वेरी नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम अनदर फ्रेंड, लाइक माई हस्बैंड गेट्स अ कॉल कि उसका हाथ क्रश हो गया है. माय गॉड. फील्ड पे, जबकि वो उसका काम भी नहीं था मैम. ही इज़ अ इंजीनियर, ही इज़ all he had to do is kind of tell people like the workers how to do it, like the thing. He was an instructor there, but I don't know for what good reason he went and he was actually crane जो होता है ना, crane अब मेरे को इतना नहीं है, crane से उसका हाथ गलत टाइम पे चला गया और वो क्रश हो गया. Oh my God. Okay. And फिर plastic surgery, all the bones and all of that happened. So ये बहुत गंदा था.
Oh my God, like it really like. तो yeah, these are एक तो ठीक है वो तो चलो कोई नहीं like but वो भी एक जिसका वो But we cannot like मतलब आपने भले बता दिया कि ऐसा चीज होने वाला है, but bones का हो या कोई भी चीज, how we can हम उसका precautions कैसे ले सकते हैं, मतलब we cannot, जो होने वाला है तो that is going to, we cannot change that. That is gonna happen, ये बोला right. अभी मैंने बोला था कि अपने हाथ पैर का ध्यान रखना right, बोन से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना. अगर कोई अब ये होना होता है हो जाता है, that is very true. But तुम्हारे दिमाग में ये तो रहता है ना कि आप मत करो वो चीज़. जैसे पहले वाले कपल को बोला कि कुछ प्रॉब्लम होगा, तो जब उनको हो रहा था तो ये होना था, हम कर लेंगे, तो खुश होने का तरीका भी होता है एक साइड से, मतलब वो पता है हम रेडी है, और शायद वो चीज़ के लिए हम रेडी हो कि हमें, because that is why you are paying me so much ना, when you are coming to me and when you are taking a suggestion, when I come to you for say any like kind of help, so obviously it is like आप किसी सजेशन के लिए जाते हो तो you have to be very careful and very you have to trust the person. Correct. Because that is why you are investing your time, your money, everything. So that is what is needed here. Correct. थोड़ा मुझे मतलब the way you said, I will start believing in a tarot card after this session. I feel like after talking to you. Look, believe is one thing, but I feel no, but the way you said me, it like hitted me like कि this is something that we really need to know when having kids in our life. If we know what is going to happen next, it really can make us feel more cautious, more know where your life is going to go next moment. ये पता है डरने की भी चीजें नहीं है कि आप इससे डरो, है ना. एट द सेम टाइम आपको थोड़ा थोड़ा केयरफुल करेक्ट है ना, कि ऐसे नहीं कि लाइफ का एंगल देखने का बंद ऐसे बोल दिया अब मेरे बोन को ये हो जाएगा. नो, इट इज नथिंग. वी कैन जस्ट बी केयरफुल, राइट? करेक्ट. Good one, actually. Next question that I really want to ask you. As a mom, we often neglect our emotional well-being. What are some simple yet powerful ways mom can heal and prioritize themselves? Okay. So, in this society, like we have this fake expectation. I call it fake because people want us to be always on our toes. You mean by people means relatives? Yes, so we are surrounded by this kind of society. Yeah, especially for moms, it has like made like this kind of. They have made a kind of, it is boundary. Like a thing, foundation that you have to breastfeed your kid. You have there to are some compulsion कि मतलब ये करना ही है तो कुछ भी कर ले. मतलब नहीं करेगी मतलब you are मतलब they will start looking at like she is then not a good mom. She really doesn't care for a baby and ऐसा ही मतलब सालों साल चलता आया और ऐसे ही चलेगा. मतलब आई रियली डू नॉट नो. मैंने जब ये पेज शुरू किया था तो वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट आई वांटेड वाज कि मुझे एक लोगों का परसेप्शन चेंज करना. लोगों से भी मतलब है कि जो हमारे करीबी है ना, द थर्ड पर्सन इन आवर लाइफ, वो लोग अपने एज अ मॉम हमको ये समझ रहे. मतलब इट रियली फील्स वेरी कि मॉम्स है, बट मॉम्स के पहले वी आर अ ह्यूमन बीइंग, मोर देन अ ह्यूमन बीइंग वी आर अ वुमेन, एंड टू बी लाइक ourself is more important than becoming a mom, I feel. एक और बात, सबसे पहली बात तो it is after having so much pain we have had that kid, right? तो हमें तो सबसे ज्यादा वो फील होगा ना. Obviously, हमसे ज्यादा कौन केयर कर सकता है, हमसे ज्यादा कौन उसको अच्छे से जान सकता है, बट लोगों को समझना ही नहीं है वो सब. और उसके बाद भी we get to see and hear so many taunts and so many things that I really feel goosebumps today also. I'll tell you one thing. I always guide people with my experience and whatever. When I had my baby 1.5 years back, my baby was not, he had some issues with my milk. He was not able to digest it. Perhaps I had, stomach issues when I was a kid growing up. So maybe that could be a reason that I assume. The doctor were also in the initial said, no, nothing, you can just try. And thodi din, just give him formula milk and then you can, try again. I did everything. Look, people used to use this कि माँ का दूध अमृत होता है. For me, I would feel it was like a poison to my kid. Because the moment I would feed him, I would be so happy. Okay, he's drinking and he would sleep. And
अचानक से he would start crying. And that would be like, you know, that was a phase where I used to feel like what to do now, what to do, like he was so small, not even a month old. So I stopped, and I would listen lot of, you know, thing from people around, kuch eat this, eat that, but it was I cannot even express my emotions here. What I did was like, no, this is not good for my kid. I would rather not do it. I know how to do it. Like, हो सकता है बस बोलेंगे ही ना, मेरे को अपना ख्याल रखना है, मेरे को अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उस लोगों का वो करने के लिए आई कैन नॉट फीड समथिंग. तो मैं यही मॉम को भी बोलूँगी, जो न्यू मॉम्स हैं, कि आप सबको खुश नहीं रख सकते हो. यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन. और ये हम समझ जाएंगे ना, हम सबको प्लीज नहीं कर सकते, तो हमारी लाइफ, हमारे बच्चों के साथ हमारी लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी. और यहाँ पे हस्बैंड्स को यू नो आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बिगिनिंग फेज. वो पोस्टमार्टम का भी फेज होता है. पोस्टमार्टम का बिगिनिंग बोल सकते हैं. जब लोग बोलना शुरू करते हैं ना, तभी वो पोस्टमार्टम शुरू हो गया. मतलब कि जो हमारे थॉट्स है ना, हमको एक वर्ड या एक लाइन बोल के जाएंगे, पर हमें कितने दिन तक वो हॉन्ट होने वाला है. दे रियली डू नॉट लाइक रियली केयर अबाउट इट कि वो कितने हद तक फर्क पड़ रहा है, बट बहुत ज्यादा होता है. एंड उसको से हील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एग्जैक्टली. वो एंड दैट गिव्स यू आल्सो सेल्फ डाउट ना, कि एम आई रियली डूइंग इट करेक्टली, बिकॉज दे आर एल्डर टू अस, मे बी दे आर एक्सपीरियंस. हम उन समय तो लड़ लेते हैं उनसे, बट बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है. कितना हद तक चलता है. आई हैव बीन लाइक सी टच वुड आई से, मैं इतनी रेडी थी व्हेन आई हैड माई सेकंड प्रेगनेंसी कि मुझे ये सब कुछ मेरे अराउंड मुझे फील ही नहीं हुआ, बिकॉज आई न्यू वॉट आई एम स्टेपिंग इनटू. बट जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन डिस्कशन वेयर वी वर ट्राइंग फॉर वजाइनल डिलीवरी. लाइक माई व्हाट यू कॉल नीचे का जो वो यू कैन कॉल द सर्विक, इट वॉज नॉट ओपनिंग. तो कितने टाइम तक हम वेट कर रहे थे, कितना टाइम, मतलब डॉक्टर लिटरली गेव मी मेडिसिन, kept on checking, but कितने घंटे हो गए, उसका तो पेन सहन नहीं हो रहा था. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज कि आई डिसाइडेड आई वांट टू डू सी सेक्शन. बट बाहर लोग लिटरली बैठ के डिस्कशन कर रहे थे वेदर आई हैव टू डू अ सी सेक्शन और नॉट, व्हाट मुहूर्त माई बेबी विल कम, डू आई हैव टू. एंड इट वॉज लिटरली मतलब कि मेरा डिसीजन, माई बॉडी, व्हाट आई वॉन्ट टू डू इज व्हाट आई विल डिसाइड फॉर माई बेबी. एंड माई हस्बैंड इज ओके, वी बोथ आर ओके एंड वी वॉन्ट टू डू इट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. और व्हाट एवरीवन आर थिंकिंग कि वजाइनल से ही बच्चा अच्छा तंदुरुस्त आ सकता है, वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा तो मतलब कितने सारे उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस है एंड बहुत सारे ऐसी चीज. तब के लिए तो आई जस्ट फेल कि बस पहली बार हुआ तो मुझे लगा कि मुझे शायद ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, शायद लोगों को ज़्यादा आइडिया है करके मैंने कुछ नहीं बोला. पर जैसे जैसे मैं इसके अंदर और जाती गई, जैसे जैसे टाइम गया, आई लिटरली फेल्ट एक चीज़ आई स्टार्टेड यू नो गेटिंग मी, मतलब कि मुझे फील होने लगा. एंड दैट वाज ऑनेस्ट अंजलि, ये जो होता है ना, ये बस मॉम्स पे ही अफेक्ट होता है. आज भी व्हेन आई एम स्पीकिंग, सी आई वो मेरे को सब याद कर रहे हैं, गूज़बम्प्स टू मी. आई कैन, मतलब मुझे नहीं याद करना है, बट कभी ऐसा आता है सामने कोई कॉन्वर्सेशन में, आई रियली फील अ गूज़बम्प्स स्टिल कि वो क्यों मैंने किसी को मौका दिया मेरे लिए डिसीजन लेने का. मतलब मुझे ऐसा फील होता है क्यों मेरे लिए कोई लेगा डिसीजन. इट्स लाइक हम, मेरी बॉडी सब कुछ मेरा. आई रियली डू नॉट अलाउ एनीवन टू यू नो what I want to do for my kids. Like बहुत सारे ऐसे, ये एक एग्जांपल नहीं दूंगी, और भी बहुत कुछ मेरे पहले प्रेगनेंसी में हुआ वे लिटरली लोगों ने डिसीजन लिया मेरे बिहाफ पे. एंड मतलब भले कोई भी हो, मतलब पेरेंट्स हो, कोई भी क्यों हमारे लिए डिसीजन ले, मतलब कि वी आर इनफ नाउ, वी आर लिटरली लाइक डॉक्टर्स आर देयर टू गाइड अस, वी आर देयर एंड वी कैन रियली टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ वेरी वेल. ट्रू, वेरी ट्रू. डॉक्टर्स तो मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि वेजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, बच्चा स्वस्थ ही रहता. जो फेस करना होता है मम्मा को ही फेस करना होता है ना. Let's not go much into it because इसका अगर हम करेंगे तो there is no end to this discussion. Correct? No, like very वो चुभने वाला जो शब्द होता है ना, बस वही बोलते हैं. My tears will start rolling and I will then not control because बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that has given me a lot of a reason for a PPD. मेरे को बच्चे को तरसा रही हो, दूध नहीं दे रही हो, ये कर रही हो. There is so much, like we really do not want to take it forward. Okay, now question 4. How can mom tap into their intuition to make a better parenting and their decisions? Okay, this is interesting. Now,
your intuition is something that can never go wrong. This is, and specifically women. I agree with you. Not women, mom intuition can never go wrong. Exactly. But in any way, not just in the mom's thing, I'm telling you, किसी भी केस में, क्योंकि जो intuition होता है ना वो एक बार आता है, ठीक है? बाकी का जो चीज़ होता है ना मैम, आपको उसके बाद 2000 thoughts will start to come in. But then the first that is intuition, and that is always correct. So stick to it. Now that could be in your कि बच्चे को खाना कब खिलाना है, when 6 months के हो रहे हैं तो अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, थोड़े पहले देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. That is your call. If you feel that your child is ready, go ahead and do it. Don't wait कि अच्छा उनसे पूछ लेते हैं, 4 लोग से पूछ लेते हैं. Ask doctor and ask yourself what has to be done, not the society, what everyone says. उसका मतलब कितना कुछ सोसाइटी को पूछ के करते हैं, उसमें कितना कुछ डिसीजन गलत ले लेते हैं. हाँ, no, you cannot give right now, दाल का पानी. It is because I gave my child after 6 months I started. But दाल चावल पानी any which ways has no nutrition. डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो आप वो सुनो ना, लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, वो क्यों सुन रहे हो? So it's completely your intuition. Even कि कभी कुछ हो रहा है बच्चे को, sometimes stomach ache या कुछ बच्चा बहुत रो रहा है, you feel कि उसको ये चीज़ हो रहा है. No, it's very common. It happens. जब भी दांत आता है तो ऐसा कुछ होता है. You cannot rely on someone else decision. आपको पता चल रहा है आपने क्या उसको हो रहा है, then you have to immediately run to hospital. That is the only way. Now the question number 5 that I will really want to ask you. Many women, especially moms, struggle with self-doubt, limiting beliefs. How can they actually shift their mindsets? Okay. Now it would be interesting to know you actually. Yeah. देखो क्या, there are many ways to it. Doubt, whenever you start to do something new, doubt is something that pops in. There is no end to it, okay? Especially when it is your kid, it is always something that you want to give your best. You want your kids to be best, okay? So we always have this tendency as moms that my kids should have everything. Normally not. छोटे चीज़ मैं बोलूँ ना, खिलौना भी होता है तो हम सब कुछ लेके आते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसी से खेले या बेस्ट हो. But you let your kid be like how they want to be. Like, free space देना चाहिए. एक टॉय से भी खेलना आना चाहिए. ऐसा नहीं इतने सारे टॉयज होते हैं, वो एक टॉय से कभी उसने हाथ ही नहीं लगाया 5 मिनट के बाद. हाँ. And also that whatever thing that you give your kid, like be it any schooling or don't doubt yourself always कि am I doing right. Now for our working moms I would say कि we as mom we feel that my son is back home, am I doing a good thing by leaving him back. Now like we spoke in our previously कि हमारा intuition का बात होता है. Now imagine me sitting at home with my 1.5-year-old. Always I would anyway not be looking at him for 24 hours. कुछ ना कुछ होगा उसमें भी. But now having this doubt, am I doing right? यहाँ पे आके podcast दे रही हूँ, मतलब वहाँ नहीं हूँ, अपना काम कर रही हूँ. So the thing is that कि जितने भी time रहो, being a working mom, give your son or daughter whatever time you have. आप जितना time मिल रहा है आप उसको बहुत अच्छे से invest करो, ताकि your बच्चा will also know that my mom is working. He will also respect it. So don't doubt yourself. Whatever you're doing it the best. और इतना limit नहीं करना खुद को, है ना? Because we also have our own lives, right? So in any ways, I hope I'm making sense to you. No, I just got lost because जिस तरह से you presented this question, because बहुत सारी moms हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 200 बार उनके पास mind में self doubt आता रहेगा. तो this is something that you give a clarity actually कि थोड़ा मैम
सिंपल सा एग्जांपल है ना, आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो, चलो राइट नाउ हमारा ये है कि हम अपने हिसाब से काम करते हैं, राइट, वी हैव दैट लग्जरी कि थोड़ा बहुत कई बार वी कैन. नाउ द वुमेन हु वर्क इन कॉर्पोरेट, वो आर टीचर्स, उनके पास वो चीज़ नहीं है टाइम का. उनके पास कितने सेल्फ डाउट्स रहेंगे, कितना कुछ उनके माइंड में चलता रहेगा व्हेन दे आर प्रेजेंटेड एट वर्क, एंड पीछे कितना कुछ चलता रहेगा, 6 hours 7 hours 8 hours. करेक्ट. एंड उसमें उनको अपना माइंडसेट चेंज करना कितना डिफिकल्ट होता है. मैं मॉम्स को यही बोलती हूँ कि आप जब घर आओ ना, तो आप जो 3 घंटे खेलते हो ना अपने बच्चे के साथ, वो बाकी के मॉम जो काम नहीं कर रहे वो नहीं देते होंगे, वो गुस्सा करते होंगे, वो डांटोगे. आप कभी नहीं डांटोगे अपने बच्चे को, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर दैट 3 hours होल डे. सो यू वुड गिव ऑल योर अटेंशन, ऑल योर थिंग टू योर बेबी. सो दैट इज इवन बेटर कि मैं 3 घंटे ही दे रही हूँ, बट वो उसी का टाइम है. करेक्ट. नाइस थिंग. ओके, अब जो मैं पूछने वाली हूँ, दैट इज अ मोस्ट लाइक thing that I really talk on my Instagram, and I've literally poured my heart on, and I really want to know your side on it. So my question number 6 would be, as a first time mom, I also dealt with like a postpartum depression, and now these days the cases are rising too much. Like आपको क्या लगता है उस पे, like why new moms slip into PPDs? What could be the major reason? ऐसा क्यों हो रहा है? postpartum क्यों इतना अभी दिखने लगा, इतने रील्स अभी वायरल होते हैं उसके बारे में, इतना कुछ हम सारी जगह पे गूगल सब जगह पे क्यों हम देखते हैं? Actually, this has always been there, okay, postpartum depression. Postpartum is something that is biological reason भी है इसका, कि थायराइड हार्मोन्स का वो लेवल ऊपर नीचे, थायराइड का ग्लैंड का कुछ होता है, हार्मोनल चेंजेस एक रीजन श्योरली होगा, नो डाउट इन इट. बट मुझे क्या लगता है ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़्यादातर क्यों होता है, दैट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय हस्बैंड, एंड आई वुड लाइक टू शेयर यू, बिकॉज हस्बैंड्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट डेज ऑफ देयर लाइफ व्हेन they actually new mom need them, is what I feel. And I always talk about कि presence of husband का क्या होना चाहिए, ज़्यादा support, correct, support, presence is what is needed. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने ये YouTube के ये वीडियो में भी मैंने शायद बोला है, एंड मैं आपको वापस से बोलूँगी, दैट है ना, हस्बैंड्स जैसे फर्स्ट नाइट आफ्टर मैरिज husbands are there, husbands really love to celebrate that. Then जब बच्चा होता है उसकी first night पे, why husband do not want to celebrate it, why do not want to stay alone in the hospitals, and they really want कि उसके बदले कोई एक लेडी वहाँ पे रहे, क्यों कोई दूसरी कोई मतलब उसकी ख्याल अच्छे से रख सकेगा. वो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि maybe as a husband, as a father, I can be a better over there being besides and supporting it. अब मैं इसका जवाब देती हूँ. मे बी आवर नेक्स्ट जनरेशन वुड बी like wouldn't repeat this mistake. However, touch wood, I am blessed with like I have a nice husband, I can say. नहीं, मुझे ना धवल ने फील कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका एक सपोर्ट, उसका वो टाइम मेरे साथ बिताना, एंड जो मेरे को एक्चुअली मेरे को बहुत. हस्बैंड्स का भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये लोगों का प्रॉब्लम होता है. जैसे वो बड़े हुए हैं मैम, उनका जेंडर स्टेरियोटाइप्स, या कि ये औरतों का काम है, मर्दों का काम, तुम जाओ मदर इन लॉज ऐसे ही बोलते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो लोग कुछ बोल नहीं पाते होंगे. अब मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट हमेशा हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं होता. इट इज यू नो द रिलेटिव्स. तू क्या करेगा यहाँ पे, तेरा क्या काम है, जस्ट गो होम, वी आर हियर टू वी. हमने 5 बच्चे किए हैं. अरे अभी बताती हूँ, एक किसी कोई आया था मेरे पास प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है, टैरो के लिए, एंड आस्क्ड मी कि क्या सर्जरी वगैरह अच्छे से, मतलब सॉरी डिलीवरी अच्छे से हो जाएगा. आई वॉज लाइक कि हाँ हो जाएगा. मेरे को थोड़ा सा चांसेस सी सेक्शन का लग रहा था. मैंने बोला कि देखो नॉर्मल हो जाएगा. तो मैं बोली देखो नॉर्मल हो, बच्चा 2 ही तरीके से आता है, या तो नॉर्मल आता है या सी सेक्शन से आता है, कोई और तीसरा नहीं है. तो जैसे भी हो जाए. सी सेक्शन भी का भी होगा ना, तो घबराने वाला कोई बात है नहीं. डोंट बी स्केयर्ड, डोंट टेक इट टू योर दिस थिंग. तो बट you know, you cannot scare someone, right? But I tell it I told the person in my way कि चलो तुम ऐसे कर लेना. अब मैम देखो क्या होता है कि जब होने लगा ना, तो उसकी माँ यही बात बोल रही थी कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं. वो औरत 3 दिन तक ICU में रही, जस्ट बिकॉज वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही थी. My God, what is this? I mean, 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में ICU में रही. वो बस उसके फैमिली ट्राई करते रहे. हाँ, ट्राई कर. Imagine like I will start to cry. How can this be? यार कितनी दर्द में रहेगी वो. तो
एंड ही कॉल्स मी. तभी मैं आपको क्या बोल रही थी कि कभी कोई आके आपसे पूछता है ना कि मतलब आई विल बी वेरी कॉशियस एंड दिस एंड दैट. जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो ना तो जो सामने से आपको दे भी रहा था उसका भी एनर्जी लग रहा होता है. तो यू नो रेस्पेक्ट दैट. अगर आप बिलीव नहीं करते हो देन डोंट टेक इट, डोंट कम फॉर इट. बट आपके साथ अगर कुछ सही हुआ है एंड अगेन यू आर गोइंग दैट यू नो फॉर गाइडेंस टू दैट पर्सन. आप टीचर जो आपको सिखाते हो आप वही सीखते हो ना, तो इसमें भी आपको ट्रस्ट करना चाहिए. आई वॉज टेलिंग द सेम. आई केप्ट रिपीटिंग टू हर हस्बैंड दैट व्हाई द हेल डिड यू कम टू मी इन द फर्स्ट प्लेस इफ यू डिडंट वांटेड टू लिसन टू ओनली कि क्या करना. नो 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 दीदी ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था. नो दिस इज रॉन्ग. मतलब आप टॉर्चर किए हो वॉट एवर इज हैपन एंड देन इज कॉलिंग मी व्हाट डू यू थिंक वो ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा एनर्जी चेक करोगे. आई एम लाइक डोंट आस्क मी राइट नाउ एनीथिंग. मैं तो वैसे भी देख ली थी ना कि क्या होगा. तो बहुत बुरा लगता है मैम. इट इज समथिंग. पोस्टमार्टम के लिए तो हम मतलब हम किसी और को क्या ही बोले. हम अपने हस्बैंड मतलब अभी क्या ही इट इज सोसाइटी. बट पोस्टमार्टम इतना क्या ख्याल रखना है किसी भी वुमेन को. अब वी आर 95. हम लोग सैंडविच के जैसे हैं कि वी डोंट गो. बट 2000 वाले जो लोग होंगे आगे के जनरेशन, आई फील दे विल टेक गुड केयर ऑफ देमसेल्फ. मैं अभी न्यू मॉम्स जितनी भी हैं उनको यही बोलूँगी कि टेक योर स्टैंड, टेक हेल्प ऑफ योर हस्बैंड इफ़ यू लाइक यू नो if he's just tell him that you know just be with to be with you and just feel good about what. आपको किसी का नहीं सुनना है. you have to be मतलब कि अपने स्किन में कंफर्टेबल हो. जस्ट बी यू नो कंफर्टेबल इन योर स्किन. द वे यू लुक यू नो मैम. मेरे को तो कुछ लोग ऐसे भी बोले कि तुम्हारा स्किन कैसा है, तुम दिखती कैसी हो. यू नो राइट आफ्टर आई वाज इन माय पोस्टमार्टम, कैन यू इमेजिन. एंड उसके बाद आई गॉट माई पीरियड्स राइट आफ्टर दैट. पीरियड्स में एक मिथ है दैट पीपल थिंक दैट आफ्टर प्रेगनेंसी पीरियड्स का पेन कम हो जाता है. इट इज नथिंग. Oh my God, I cannot tell you, this is horrible. Like अगर कोई ऐसी बातें करता है तो वैसा था. उसमें लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके गेस्ट को यू नो आपके घर में गेस्ट है तो यू नो यू वेलकम देम एंड थिंग्स लाइक दैट. 7th question that I really want to ask you is like what is that one reason, like I want to know that how to overcome this वो जो initial days की जो postpartum blues है, मतलब कि क्या steps लेने चाहिए, कैसे उसको you know और उसको better कर सकते, एक better place बना सकते moms अपने आप के लिए कि वो easily overcome कर ले ये challenge को. Only the first and foremost thing is to set boundaries with relatives or the people. You know, there are people in your family who are like, you know, they, no matter what लोग बोलेंगे ही वो चीज़. तो you have to shield yourself, है ना, कि आप नहीं किसी को ना you cannot say things to your mother-in-law. You have to listen it. ना मेरे केस में क्या होता था, जबकि मैं अपने ससुराल 6 महीने के बाद गई थी. When my kid was 6 months or about to be 6 months, I think तब गए थे around 6 months. And the kind of word that she used to say, it used to trigger me a lot. And if she would just say it for a minute or two, I would take it till 5 days, 6 days. Okay? Cry in the washroom, in the room, every corner of the house. Okay? ऐसे नहीं ये बुरे लोग हैं, उनका वो आदत है. लाइक मैं कभी अपने ससुराल में कभी मैंने खाना निकाल के भी नहीं खाया है. लाइक शी वुड सर्व मी एंड ऑल ऑफ दैट यू नो. फॉर दैट मैटर मेरे फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. कभी मेरे को कुछ छूने नहीं दिया, ऐसा है. बट क्या होता है ना कि कुछ अब जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, हमने तो ये ऐसे बच्चे पैदा किए. मेरा जब ये बेटा था तो आई वेंट टू वर्क लाइक दैट. ओके, दैट वॉज योर टाइम. उस समय आप ब्लिंकिट से ऑर्डर नहीं करते थे सामान. उस समय चीज़ें वो डिफरेंट है ना. आप वो सब कुछ जो आपने सफ़र किया, टाइम अलग था, हमें करना ज़रूरी है. वो आप वो दूसरे पे नहीं थोप सकते कि हाँ हमने ऐसे कपड़े पहने हैं, हमने ऐसे सर कवर करके रखा तो आज. वो टाइम अलग था, आपने किया होगा. आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, है ना, कि आपको ऐसा करना पड़ा. बट हमें क्यों करना है?
ज़रूरी नहीं है आपकी सास जो अब कर रही है वो आप अभी कर रहे हो, राइट? अभी तो आप फ्री हो, आप घूम रहे हो, आप तरह तरह की चीज़ें कर सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप एक तो डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ में 25 ईयर्स का एज गैप होता ही होता है, इवन मोर और लेस, या यू कैन हाउ टाइम, मतलब अभी तो मतलब 2-3 साल में इतना ज़्यादा फर्क आ जाता है, राइट? So I don't think like, you know, here na what postpartum, the main cause of postpartum is comparison. Okay, you have to draw a line. उस comparison से, okay fine. If they tell you something, you know, you're not doing it properly, I'm sorry. But then you tell, this is my way of doing it. I think I'm very much comfortable here. Now if they tell you this is how you should be done, just say yes, just try to get out of that conversation and मुझे तो लगता है ना पोस्टपार्टम के लिए, मतलब कि आई फील कि हमें फैमिली को इतना प्रायोरिटाइज ही नहीं करना कि फैमिली कुछ ऐसा बोल रही है जिसका हमें वर्ड इतना लग रहा है। मतलब कि आई फील कि हमें रेडी रहना ही चाहिए हर औरत को इसके बारे में प्रॉपरली। एक अभी तो काउंसलिंग्स होते हैं, अभी तो कितना कुछ अवेलेबल है कि एक औरत को ये सारी चीज़ों के लिए रेडी होना ही है कि ये हमारे रास्ते में आने वाला है एंड मुझे इसको इतना अफेक्ट नहीं करना है। मतलब कि मैंने सुना, आई टुक इट एंड आई जस्ट वहीं पे ख़त्म भी कर दिया। एंड उसको मतलब कि MIL, मेरी मॉम क्या बोल रही, मतलब आप लोग के ज़माना, एक उन लोगों को जितना कम्युनिकेशन के जितना आप समझा सकते हो कि अब का टाइम और उस टाइम में क्या डिफरेंस है, शायद ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरा है आई फील अ न्यूक्लियर सेटअप, लाइक हस्बैंड वाइफ स्टेइंग अलोन, एंड ये फेज में जितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो ना, ये इतना ही लाइटर फील होता है, इज़ व्हाट आई फील। लाइक जितना जॉइंट्स में मतलब कि MILs मॉम का जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ये ज़्यादा अफेक्ट, जितने लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आई फील कि अफेक्ट करेगा। मेरे को ऐसा लगता है बर्डन नहीं रखना चाहिए कि हमने ऐसा किया तो तुम भी इसी वे में करो। मदर इन लॉ या मदर्स, they will add in help only, but only when they, you know, when there is a compatibility, when we are asking, then we surely help. When we are not asking and आप जबरदस्ती हेल्प करोगे एंड वो ज़्यादा नहीं कंफर्टेबल नहीं है, एक कंफर्ट जोन के बाहर जा रहा है, तो उनको भी सामने समझना पड़ेगा दिस इज लाइक समथिंग। अभी you know what, कि बच्चे को कंघी नहीं करना चाहिए। This was something told my mother-in-law. Now हमें तो ये समझ में आता है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन होता है तो बच्चे को करना चाहिए। उसके सिर में कुछ होती है, अब उनका कुछ लॉजिक होगा, उन्होंने कुछ सुना होगा, बट उसको आप थोप रहे हो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाके तो गलत है। एग्जैक्टली कि अब जैसे मालिश करना जरूरी नहीं है बच्चे को, मसाज इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली बिकॉज देयर बॉडी इज लाइक दैट, यू नो, टिल 5 years of age you should do it। बट आप ऐसे रुला के उसको जबरदस्ती का उतना आप एक्सेसिव बोलोगे करने के लिए, तो वो सारी चीजें बदल गई, टाइम बहुत बदल गया। अब पोस्टमार्टम का एक ही मैं बोलूंगी मेजर रीजन, जो आने वाले 15 साल 10 साल के बाद हमें वो और बेटर होता ही दिखेगा। हमें इतना एक्सटेंसिव जो आज के जनरेशन में जो हम 95 की मॉम ने झेला रहेगा उतना तो नहीं रहेगा, बिकॉज आई फील कि अब जनरेशन बदल रहा है, अब हस्बैंड्स आगे आ रहे हैं ये सारी चीज को सपोर्ट करने के लिए। I used to hate when my mom used to put kajal onto my babies. I am still against. I have not put kajal for both of my babies. भले लोगों को या मेरे घर में किसी को क्या भी लगे, but I really do not. मैं नहीं कर पाती थी, मेरे हस्बैंड भी मम्मा को ही सपोर्ट करते थे मेरे, तो मैंने तो नहीं बोल पाया और मेरे को बहुत गंदा लगता है। But I tell and she knows about it. My mom knows क्योंकि मेरे फेस पे ना कोई ये नहीं है, तो it is like visible that I don't like something. And one more thing, whoever is going to plan a baby, if you are pregnant, the moment you conceive, you start seeing what is the consequences, because people enjoy. It's not about enjoyment. It is a bubble that you are living in. It's not about enjoying. There are more challenges that you are going to come up with. Educate yourself. Now you have access. You have YouTube. You have completely, there are many platforms where you can just go to, you know, like, you know, Google it or whatever and educate yourself. So this is gonna come your way. This is gonna be next, and prepare yourself. Now it is even better to prepare. Moms, है ना? हमारे टाइम में शायद था तब भी, but we were not like, you know, educated. If you know, going if I think that, you know, going 2 years back, like I also feel कि आज से 2 से 5 साल पहले देखो तो इतना
इसकी इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं थी, इतनी अवेलेबिलिटी गूगल वगैरह कुछ नहीं था. आई फील इट लाइक प्रेग्नेंट हुई और कब डिलीवरी हो गई उसके बीच में आई थिंक 1 सेकंड में ये सब चीज़ें ऐसा पलट के देखो तो हो गया. आई फील लाइक दैट. उतना मतलब अवेयरनेस ही नहीं मिला हमें. एंड अभी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई फील जब भी मॉम एक प्रेग्नेंट होती है ना उसको उसके बाद की जितना वो अच्छा मूवमेंट है उतना ही वो बुरा वक्त भी आने वाला है. सो यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर इट. लाइक अभी जैसे लेडीज लोग है ना कपड़े के लिए गर्ल्स न्यू मॉम्स एक्साइटेड होते हैं कि ये शूट मैटरनिटी फाइन. आई एम नॉट डिस्करेजिंग, गो अहेड एंड डू इट. इट्स अ ब्यूटीफुल इसके साथ ये भी करो कि आप इसके लिए रेडी हो रहे हो कि अब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद ये सारे स्टेजेस आने वाले हैं. मुझे इस तरीके से अपने घर वालों को भी रेडी करना है, अपने आप को भी इस चीज़ के लिए रेडी करना है. एंड मैंने तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में हर एक चीज़ को एक अच्छे से प्लान किया हुआ था. सो आपने एक्सपीरियंस किया होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी. जब बच्चा अंदर रहता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता शायद आप कैसा फील कर रहे हैं. द मोमेंट इट कम्स आउट इट इज लाइक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवरीवन प्रेगनेंसी के टाइम पे दूध पी लो, ये खा लो, वो खा लो, यू आर बीइंग पैम्पर्ड बाय एवरीवन. बट द मोमेंट इट कम्स आउट द फोकस गोज ऑन टू द चिल्ड्रन like child or like if you have the twins तो उसके केस में तो और भी worst होता है मम्मा के लिए. उसमें तो पता नहीं मतलब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पर वो टाइम का डिप्रेशन तो पता नहीं. आई विल रियली वांट टू डू सम टाइम अ पॉडकास्ट विद अ ट्विन मॉम कि एक्चुअली वो कैसे ओवरकम करती है. आई जस्ट कैन नॉट मतलब रियली मुझे सबका सिचुएशन अलग होता है. The 8th question and बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. Hear me out. That kids absorb a lot of energy from their surroundings. Like, do you recommend any energy cleansing practice for their families? ऐसा कुछ है जो you will recommend it to do? Yes, I do it for my kid also on regular basis. Energy cleansing. Yes, and healing as well. So there are few remedies also that you can start doing. You can bring it in your practice like things like salt. So salt has been an ancient tool for cleansing or healing. Okay, कि पहले के ज़माने में मेडिसिन नहीं होता था तो आप वुंड पे भी ना लोग नमक डाल देते थे. आयुर्वेदा टर्मरिक डाल देते तो ब्लीडिंग रुक जाता था. ऑल ऑफ दैट. So because salt is a healing tool, it is also a cleansing. ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है, गंदगी निकालता है. तो क्या करो आजकल तो खैर there are many on many channel you will see this rock salt and these beautiful there are several things come up and then people वो लैम्प लेके भी रखते हैं and then they keep it forever. उसको फेंकते नहीं है. बट मैं क्या कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को एक बोल लो उसमें whatever salt, be it a pink salt or whatever salt that you consume in your kitchen, you keep in a bowl and you keep in a room wherever जहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच पाए. Just keep it and right after 2 days or 3 days just take that salt, flush it off, wash the bowl and refill it with the new salt. Like so much, not ज़्यादा विकास भी ज़रूरत नहीं है. जो सॉल्ट होता है ना वो एब्जॉर्ब करता है नेगेटिविटी. अच्छा. जो भी नेगेटिविटी होता है and it helps you cleanse your home also, and aura and the living. So it helps. Negativity बहुत help. Even when for the moms who are going through depression or anxiety issues जिसको होता है, they can do this practice that take a tablespoon of salt and any time of a day, doesn't matter when you're anxious, when you don't know what to do, just grab a tablespoon of salt, go to the washroom, wash your hand with salt just the way you wash your hand with hand wash, soap, whatever, and just let your hand dry in the air. Just just let it be. And while washing your hand, say that you're washing away your problems. Now that problem could be anything, XYZ. ठीक है, बोलो क्योंकि सब मैं धो दी हूँ लाइफ से. This actually helps. Try someday. Like I will, because ये आपने जो बोला वो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा नया है. मतलब I have not been a believer of all this. तो मुझे थोड़ा सा ये है कि इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं. नहीं जाता है. नहीं करने में कोई नहीं, कुछ नया प्रैक्टिस है. It's a new thing that आपने बोला है ना. I would really like to try it out for myself and would want to know like. देखो क्योंकि हम जिस जनरेशन के ना we cannot do all those बहुत extra out of the way जाके rituals नहीं करते. So I suggest basic things से हम better life कर सकते हैं. Better, very minimal. Now अब healing कुछ होता है जो healing can help children focus.
healing can help children, calm down. है ना, एक negative जो not just for the younger ones but also the elder ones, जिनका teen age में जो घुस रहे होते हैं, जिनका mindset, अच्छा like you are controlling screen time for your kid. Now tomorrow he'll step out, he'll have his own sense, he will see his friends. क्या पता what will be the situation, perhaps their parents would be allowing. Now this one will get stubborn there, that cranky thing, why he can watch everything, why you don't allow me. So to control that kind of thing, these healing and all helps to be a little smoother, to be patience, to have patience, to understand. So that helps. Question 9 is like you have literally poured your heart about this. मतलब बहुत आप बिलीवर हो मैनिफेस्टेशन का, मतलब कि बहुत सारी इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो. तो मुझे ऐसा कुछ बताओ जो दैट आर वेरी सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दैट एक मॉम अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकती है ना, अपने अप्लाई करना शुरू कर सकती है. कैसे कर सकती है, क्या एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू टेल देम? ओके, मैनिफेस्टेशन के लिए तो मेरे को लगता है आपको एक अलग पॉडकास्ट लेना चाहिए. करें हम, बिकॉज मैंने आपका बहुत देखा है इंस्टा पे, यू टॉक अ लॉट अबाउट लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर. लाइक हम लोग ने भी इतने कॉन्वर्जेशंस किए बिफोर आवर पॉडकास्ट, वी हैड अ सिप ऑफ अ कॉफी विद दैट. तो मुझे लगता है कि यू रियली बी अ गुड पर्सन टू टेल कि मॉम्स को मैनिफेस्टेशन पहले तो कैसे हेल्प करता है और क्या सिंपल चीज़ें हैं वो अपने रूटीन में कर सकती है. देखो मैम, बहुत लोग हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं कि ये क्या बकवास करती है. सबसे पहले तो मैं नेगेटिव पार्ट बोलूँ कि लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले तो लोग काम करते हैं तो पहले ही रिजल्ट का सोच लेती हूँ. ओके, व्हाटएवर. मैं बताती हूँ मैनिफेस्टेशन से क्या होता है ना, नथिंग इज देयर, इट इज़ जस्ट दैट यू आर थिंकिंग पॉजिटिव about yourself. Okay, manifestation helps you to be positive about each and everything that you are thinking or that you want in your life. Having said that, always things doesn't go our way. Okay, but it can get even better, or at least if the thing doesn't happen in that the way you want, it can it will channelize in a different thing and you might end up doing something really different that you would have never imagined. Okay, now manifestation का बात करती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ आज से कुछ मतलब जब I was working, okay, I was thinking of all of this, कब मैं videos बनाऊँगी, कब मैं क्या करूँगी. I am like I am too much into fashion. Okay, for whatever reason I couldn't pursue that. But I always loved cosmetics and fashion, like everything about fashion. Now this is something that destiny has planned for me, और ये मैं कर रही हूँ, and I am doing everything that I love. Now coming down to my current situation, I'll tell you about crystals. Remember I was explaining you. This was never my profession, the tarot thing. I just learned it 10 years back. Now when I started actually doing it and helping my clients about crystals, like how to use them, so I am someone I need to know the root from the root, each and everything, so that I can make them understand better about things. So तो क्या होता था कि उस टाइम पे I started writing it down कि मतलब I write every day, like कि 10 days down the line I should be completing this chapter. So I was doing a proper course during my pregnancy about the crystals. मैं बस इसलिए क्रिस्टल करना चाहती थी ताकि मैं अपने क्लाइंट को कन्विंस कर पाऊँ कि दिस एक्चुअली हेल्प्स, क्या क्या हेल्प करता है, एंड एवरी प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग अबाउट क्रिस्टल्स. And I have a business right now. I'm running a business and I'm making good money out of it. So you see how things, like I never thought 2 years back that I would be doing this. I would be selling bracelets and things like that. मैं इसको charge करके दूंगी and ये ऐसे affect करेगा. It is not just about the money. It is also about every day when I wake up, I have list of things ready to. List of messages, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. You're an angel to me. This has happened. I got my job. मेरा check clear हो गया. This, that. 200 things. Can you imagine? किसी ने ये भी लिख के भेजा था कि मेरा बेटा मतलब उसका बेबी था, वो हमेशा डायपर में पॉटी करता था.
तो मैंने कोच करा था, मैंने बताया था, एंड उसके बाद वो पॉटी में जाके तो उसके लिए भी यू आर बीइंग यू आर लाइक अ एंजल, यू नो। अब वो पॉटी में जाके करता है ना, आई एम नॉट लाइक, उसको एम्बैरेस फील होता था क्योंकि बाकी के बच्चे करते हैं। अब ये भी बहुत गलत बात है, आपको एम्बैरेस फील नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा है, वो सीखेगा, टाइम देना पड़ेगा वो चीज को। बट बेचारा वो 5 ईयर क्रॉस कर गया था, माँ का भी अपना वो होता है कि वो नहीं टाइम दे पाएगा। बेचारी बहुत परेशान थी, तो शी वाज लाइक आई एम वेरी वरीड, एंड शी वाज अ वर्किंग मॉम, so she was like really happy, you know. So that was also like, oh my gosh, nothing like it. So manifestation helps. You know what, just write it down, whatever you plan, just write it in a present tense, that it has already happened in your life. Like what I do, I had already planned for Feb, कि फेब में मेरे को क्या चाहिए, आई राइट इट इन जनवरी और आई राइट इट इन दिसंबर। आपको पता है ये पॉडकास्ट का मेरे को नहीं पता था, मैंने नवंबर में मैनिफेस्ट किया था कि मैं करूंगी पॉडकास्ट, एंड क्या से वी हैव नो प्लान, दिस इज योर फर्स्ट पॉडकास्ट एंड यू और मी आर ओके। इट वाज लाइक मजा आया टुडे टू टॉक टू यू। The last question that I will really want to ask you is, what is that one message that you will leave for moms who are on a journey of self-growth, they are healing? What is that message that you will like to convey them? Okay, so everyone has their personal journey. Every moms have their own personal journey. So जब वो अगर वो कुछ इंक्लूड कर रहे हैं अपने लाइफ में हीलिंग के लिए, या नाउ हीलिंग कैन बी इन एनी फॉर्म, है ना। किसी को बस आप अकेले बैठ जाओ, मेडिटेट कर लो कुछ टाइम, वो आपका हीलिंग का वो हुआ, इफ यू फील यू नो लिटिल बिट calm and better. So now you have to find out what is the way, and of course if you can inculcate new forms of like whatever, now you have to find out, and healing is something that will not just help you. It is not only about the spiritual growth, it is also about in total, like about your life, about your work. It will bring in balance throughout your, you know, not with the just your family thing also. It will have a balance between the professional and personal growth as well. This was actually a very insightful, so raw, so मतलब कि इतना connect feel हुआ तेरे से बात करके. I really had a lovely time chatting over with you, and I'm sure कि ये वीडियो जितने न्यू मॉम्स देखेंगे उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ उनको मतलब रिलेटेबल लगेगा, and they will really take a lot from this video. I'm really very thankful that you came all the way from Bangalore and had this sit with me and had this chat with me. Really thank you so much, Soumya, for coming and gracing this couch. Thank you so much, Anjali, for having me, and it was really an amazing experience. I hope that the message, I mean, this should reach all the new moms out there, and I hope this would help them, have even if एक भी चीज़ है उनको कुछ लगे and उससे कुछ help हो जाए, तो this nothing like it. This is what is our purpose, right? To help all the moms out there. And this was only the purpose when I started my page, The Sassy Mom, to help more and more moms. And this is the second step that I am taking towards helping more moms with the longest conversation. Jitna raw, jitna insightful I can provide, I'm just trying to do that. Yeah, and I am sure that awareness जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा, and they will be like, they will have a good time, like not like struggle the way we suffered. I don't want this to happen to new moms. Hope you really had a fun in today's episode, and if you really love today's podcast, then please go and subscribe my channel. And also, Soumya is really a good life coach, a healer, and a tarot card reader. And if you need any guidance, then please, I'm sharing a link in the description box.